Good morning, ma'am. Yes, yes. Good morning. Just wait.
Yes, voice is audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Are you able to see the screen? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So now, yesterday we have studied about the first hormone, that is the auxin. Okay. So that is the first promote growth regulator, growth promoter. Now, second growth promoter is the gibberellin. Okay. So today we will discuss about the gibberellin and the cytokine. Okay. So you can see in the picture, there are another group of plant growth regulator which are known to be weakly acidic growth hormone. Okay. ये जो hormones हैं, gibberellins हैं, group of plant growth regulator, and they are weakly acidic. Okay. Voice is audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. ma'am. So they are weakly acidic growth hormones. There are more than 100 different gibberellins reported from widely different organisms like fungi and higher animals. Okay, fungi or higher plants से, not animals, sorry, from fungi and higher plants से 100 different type के gibberellins जो हैं वो observed हुए हैं. So all of them are known to be acidic in nature. Thus they are termed as gibberellic acid, Ga1, Ga1, Ga2, Ga3, and so on. उसमें however Ga3 is the most important gibberellic acid which was first to be discovered, and it is most widely and extensively used. Okay, among all gibberellins जो सबसे ज़्यादा use होता है that is a Ga3. Okay, but just remember it is a acidic in nature and it is a weak acid, and there are hundreds से भी ज़्यादा gibberellins जो हैं वो discovered हुए हैं. उसमें क्या है, Ga3 is the most important gibberellic acid जो firstly discovered हुआ है and most extensively used hormone है Ga3, gibberellic acid. Okay, now there is a discovery. This is important. उसने कहा in earlier part of 20th century, the Beckeney foolish seedling disease of rice was reported to be caused by a fungal pathogen Gibberella fugicori. Okay, so इसमें क्या था कि जापानीज जो जापान के फार्मर्स थे उन्होंने इसको राइस फील्ड्स को देखा और राइस फील्ड में देखा कि कुछ फ्यू जो राइस सीडलिंग्स थे वो मतलब उसमें बहुत ज्यादा टॉल थे, मतलब बहुत ज्यादा ही एक्सेप्शनली, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शनली टॉल थे. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो जापानीज के फार्मर्स थे दे हैव ऑब्जर्व्ड फ्यू राइस सीडलिंग्स जो थी फील्ड में जो मतलब बहुत ज्यादा टॉल थी. ओके, सो उसने क्या उन्होंने देखा कि क्या चीज है, तो देन दे हैव ऑब्जर्व कि दे आर हैविंग अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज अ बेकने डिजीज. ओके, तो उन्होंने फील्ड में राइस सीडलिंग्स देखी जो बहुत ज्यादा टॉल थी, तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया उसके बाद कि क्या प्रॉब्लम है, तो दैट इज अ बेकने डिजीज इन देयर लैंग्वेज. उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बोला कि दे आर हैविंग अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज अ बेकने डिजीज. ओके, और उसको बोलते हैं फुलिश सीडलिंग. फुलिश सीडलिंग मतलब इतनी ज्यादा टॉल थी कि मतलब फुल इसको इसको नाम दिया फुलिश सीडलिंग्स. और बाद में ये ऑब्जर्व हुआ कि वो जो फुलिश सीडलिंग थी वो किसकी वजह से थी, was reported to be caused by a fungal pathogen Gibberella fujikuri. ओके, सो उसने कहा है कि फील्ड में फार्मर्स थे जापानीज में, जापान में हुआ, जापानीज के जो फार्मर्स थे उन्होंने फील्ड में फ्यू राइस सीडलिंग्स जो है कि जो बहुत ज्यादा टॉल थी और जिसको उन्होंने नाम दिया फुलिश सीडलिंग्स. उनकी लैंग्वेज को बेकनी डिजीज बोलते हैं. और डिजीज किसकी वजह से थी, दैट डिजीज वाज ड्यू टू ए फंगस पैथोजन जिसका नाम है जिबरेला फ्यूजिकोराई. ओके, तो उसने कहा है कि जो ये जो राइस सीडलिंग्स है वाज इन्फेक्टेड बाय अ फंगस. फंगस का नाम है जिबरेला फ्यूजिकोराई. और जिबरेला फ्यूजिकोराई जो है उसके अंदर एक केमिकल सबस्टांस, एक एक्टिव केमिकल सबस्टांस जिसको जिबरलिन, उसके इट कंटेन एक्टिव केमिकल सबस्टांस दैट इज कॉल्ड एज अ जिबरलिन. और बाद में उन्हें उन्होंने उसी को नाम दिया दैट इज द जिबरलिक एसिड. Okay, so you can see here symptoms shown by the infected plant were elongated stem, little or no production of grain, and plant become weak. Plant क्या था, जो कि जो राइस की सीडलिंग स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, पतली सी स्टेम होती है उसकी. ओके, तो उसने क्या लिटिल और नो प्रोडक्शन एंड गेन, प्लांट बिकम वीक. प्लांट क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी होगी स्टेम तो वो स्ट्रेट जो है खड़ी भी नहीं हो सकती है. ओके, क्योंकि स्टेम जो है अगर
पतली होगी, वीक स्टेम होगी, तो अगर वो ज्यादा हाइट तक वो है खड़ी नहीं हो सकती है, स्ट्रेट नहीं खड़ी हो सकती है, इसलिए जो उन्होंने देखा कि जो लीव्स थे वो नीचे की तरफ जो प्लांट थे वो नीचे की तरफ बेंड हो गए थे. Thus, it was later identified that the active substance involved here was gibberellic acid. The Japanese plant pathologist Kurosawa ने इसको बताया था. Kurosawa reported the appearance of symptom of the disease in uninfected rice seedling when they were treated with sterile filtrate of the fungus. और अब इन्होंने इसको प्रूफ कैसे किया कुरसावा ने, जो अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स थे उसको उसी फंगस में डाला, मींस उसका ट्रीट किया स्टेराइल फंगस के साथ, तो उनको क्या पता चला कि जो वो जो अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स थे वो भी फिर जो है जो फुली सीडलिंग्स की तरह ग्रो करने लगे. ओके, तो इस वे में उन्होंने इसको नाम दे दिया. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि यू कैन सी कि जो जापानीज के से कि जो जापान के फार्मर्स थे उन्होंने राइस सीडलिंग्स देखी थी जो एक्सेप्शनली टॉल थी, बहुत ज्यादा टॉल थी. तो आफ्टर दैट लेटर ऑन दे ऑब्जर्व कि these seedlings were infected by a fungus. The name of the fungus is Gibberella fujikarae. ओके, और उस फंगस का नाम, उस फंगस के अंदर एक एक्टिव सबस्टांस था जिबरलिक, बाद में उन्होंने उसको नाम दे दिया जिबरलिक एसिड. ओके, और फिर कुरसावा ने उसको लैब में ट्रीट किया विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस. जो अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स थी उनको उसको ट्रीट किया फंगस के साथ, तो फाइनली दे ऑब्जर्व कि वो भी वैसे ग्रो कर रहे थे जैसे जो राइस सीडलिंग्स उन्होंने फील्ड में देखी थी. ओके, सो क्लियर? यस, वॉइस इज ऑडिबल. Yes, ma'am. Okay, so this Yes, ma'am. is the discovery of the gibberellic acid. Okay, अब उसने कहा है कि हंड्रेड ऑफ जिबरलिक एसिड अभी तक जो है आइसोलेट हो चुके हैं, 100 हैं, और उसमें से GA3 जो मैंने आपको पहले बोला, GA3 इज द फर्स्ट आइसोलेटेड और सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टडी हुआ है और यूज हुआ है GA3. ओके, now you are having the functions of gibberellin. Okay, according to their फंक्शन, मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिस्कवरी देखोगे तो डिस्कवरी में भी ये चीज है कि इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जैसे उसने बोला कि स्टेम जो थी वो एक्सेप्शनली टॉल थी, एक्सेप्शनली लॉन्ग हो गई थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिव सबस्टांस दैट इज अ जिबरलिन. ओके, तो फर्स्ट इज द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड. It help in elongation of the internode so as to increase the height of the plant. They cause an increase in length of axis and is also used in increasing length of grape stalks. Okay, अब उसने कहा है कि जो ये है जिबरलिक एसिड है ये स्टेम को इलोंगेट करता है. इलोंगेट करने का मतलब जो है इलोंगेट ऑफ द इंटरनोड. बेसिकली पूरी अगर आप देखोगे तो स्टेम इलोंगेशन का मतलब कि इंटरनोड. अगर आप स्टेम की प्लांट की स्टेम को देखोगे तो जो इंटरनोड्स है, यू ऑल नो कि व्हाट इज इंटरनोड. ओके, इंटरनोड क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द टू नोड्स. दो नोड्स के बीच में स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनोड. तो बेसिकली जो दो नोड्स के बीच में स्पेस होती है इंटरनोड को इंक्रीज करेगा, जिससे शूट जो है वो इलोंगेट होती है, उसकी लेंथ बढ़ती है. In the same way, they cause an increase in length of axis. Axis means वही shoot की जो axis है, and also use increasing length of grape stalks. You know कि grapes जो होते हैं वो bunches में होते हैं, तो अगर आप grapes की जो stalk है उसको अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली जो बंच है वो पूरा बड़ा होगा, साथ में जो फ्रूट्स है वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे. अदरवाइज यू हैव सीन कि जो ग्रेप्स में बिल्कुल ग्रेप्स पास होते हैं. ओके, तो उस वजह से फ्रूट्स में प्रॉब्लम होती है कि जो अगर एक दूसरे ग्रेप्स जो एक दूसरे को टच करेंगे तो उनमें एक दूसरे में स्कार्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. ओके, सो बट व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस जिबरलिन इन द ग्रेप्स, अगर उसमें हम जिबरलिन इंट्रोड्यूस कर दें तो उससे क्या होगा कि जो ग्रेप्स की स्टॉक होती है, स्टॉक इलोंगेट हो जाएगी, जिससे फ्रूट जो है वो थोड़े जो ग्रेप्स हैं वो थोड़ी दूर दूर होंगे, तो स्कार्स में प्रोड्यूस नहीं होंगे. ओके, सो बेसिकली ये हर जगह स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है. Then elongation of genetically dwarf plants. उसने कहा it has been seen that if gibberellins are administered to a dwarf plant, maize, wheat, pea, maize, it may help in overcoming dwarfism. Means कि अगर जो plant already dwarf है, ये नहीं कि जो plant अभी हम grow कर रहे हैं, जो पहले से dwarf है, अगर उनके अंदर भी आप जिबरलिन को introduce करते हो तो उसके जो size है, जो length है वो बढ़ेगी. ओके, तो dwarfism जो है वो reduce हो जाएगा. It also cause fruits to elongate and improve their shape. जैसे एप्पल है, एप्पल की शेप को बढ़ाने, एप्पल के साइज को बड़ा करने के लिए, उसकी शेप को चेंज करने के लिए भी हम जिबरलिन का यूज कर सकते हैं. अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिबरलिन उसमें, तो उसने कहा इट आल्सो कॉजेस फ्रूट्स टू इलोंगेट. फ्रूट्स इलोंगेट होगा और उसकी शेप जो है वो भी अच्छी हो जाएगी. तो मीन्स कि यू कैन से कि फ्रूट साइज को भी बढ़ाता है जिबरलिन.
Then you are having the bolting. The gibberellin also help in promoting bolting, internodal elongation, just period to their reproductive phase or flowering. If gibberellin is sprayed on rosette plants like beet, cabbage, as these plants show extensive internodal growth and profuse leaf development. Now just try to understand first of all what are the rosette plants. Rosette plants क्या होता है, जैसे आपका बीट है, कैबेज है, जिसमें यू हैव सीन कैबेज, कैबेज में बिल्कुल पास 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 होते हैं लीव्स, ठीक है, और वो बिल्कुल मतलब उसके जो उसको आप रोजेटी प्लांट्स बोलते हो। ओके, तो इंटरनोड्स बिल्कुल उसमें, अगर आप कैबेज को देखोगे तो बिल्कुल जो है इंटरनोड्स होती ही नहीं है, बिल्कुल छोटी सी होती है। तो अगर आप रोजेटी प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करोगे जिबरलिन तो उसमें इंटरनोडल जो है इलोंगेशन होती है। ओके, बट आपने उसमें उसको आप बोल्टिंग बोलते हो। ओके, तो रोजेटी प्लांट्स में अगर आप जिबरलिन इंट्रोड्यूस करते हो तो उसमें बोल्टिंग होगी। बोल्टिंग मींस कि इंटरनोडल इलोंगेशन, जो इंटरनोड्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, तो उससे जो कैबेज है वो बड़ी होगी। ओके, नाउ जस्ट वेट, आई विल शो यू द डायग्राम। हाँ, ओके, आर यू एबल टू सी दिस पिक्चर? Yes, ma'am. द डॉफ प्लांट, ये देखो, ये डॉफ प्लांट है। तो अगर आप डॉफ प्लांट को डॉफ प्लांट में अगर आप जिबलिन इंट्रोड्यूस करते हो तो उसमें ट्रीटेड विद GA3, तो देखो ये चेंज हो जाएगा शेप इसकी। अब शेप कैसे चेंज हुई इसमें, ये नहीं कि शूट इलोंगेट हुई है, बेसिकली इसमें क्या हुआ, इंटरनोड इलोंगेट हुई है। यू कैन सी हियर, यहाँ देखो इंटरनोड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटरनोड, यू नो, ये देखो स्टेम से जहां ब्रांच निकलती है, ओके, दैट इज इंटरनोड। ओके, द फ्रॉम फ्रॉम द स्टेम जहां से ब्रांच अराइज होती है, दैट इज द नोड। ओके, और दो नोड के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ इंटरनोड। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ इंटरनोड कितने छोटे 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 हैं। ओके, बट इन अब इसमें हमने क्योंकि जिबलिन इंट्रोड्यूस किया तो इंटरनोड देखो ब्रांचेस कितनी दूर दूर चली गई, यहाँ ब्रांचेस कितनी पास पास हैं। लेकिन यहाँ अगर आप लीफ लेते हो या ब्रांचेस लेते हो तो लीफ जो है वो कितने, यहाँ पे देखो जो है पास पास है। यहाँ देखो क्योंकि हमने जिबलिन इंट्रोड्यूस किया तो वो इंटरनोडल इलोंगेट करेगा, इसलिए ये देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितनी पास है दोनों, और यहाँ ये देखो कितनी दूर चलेगी, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जिबलिन इट। ओके, ये तो प्लांट की बात होगी। इन द सेम वे अगर आप कैबेज में भी देखते हो तो कैबेज में जो वो नोड्स होते हैं, जो उसके लीव्स निकलते हैं, ओके, वो बिल्कुल पास 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 होते हैं। अगर आप उन्हीं लीव्स में उसमें अगर हम उसकी फ्लावरिंग से पहले जो है रिप्रोडक्टिव फेज से पहले अगर हम उसमें जिबलिन इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो जो हमारी कैबेज है वो भी हमें बड़ी मिलेगी, उसमें इंटरनोड्स जो है वो बड़े होंगे। सो बेसिक फंक्शन जो है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जिबलिन का, इंटरनोडल इलोंगेशन। ओके, और ये बोल्टिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। बोल्टिंग भी वही है, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डॉफ प्लांट मींस कि प्लांट की साइज को इंक्रीज कर रहा है, मींस ब्रांचेस में जो इंटरनोड्स हैं उनको बढ़ा रहा है। लेकिन बोल्टिंग में क्या होगा कि आप कैबेज फ्रूट को देखते हो, जो आपकी वेजिटेबल होती है, कैबेज हो गया, बीट हो गया, तो उनके जो इंटरनोड है उनको बढ़ा रहा है, मींस कि फ्रूट के साइज को बढ़ा रहा है। ओके, देन यू आर हैविंग ब्रेकिंग डोरमेंसी, इट आल्सो हेल्प इन ओवरकमिंग डोरमेंसी इन buds, tuber, seeds and help them to grow. First of all, व्हाट इज डोरमेंसी, यू नो कि डोरमेंसी होता है एक रेस्टिंग, क्या है, इनएक्टिव स्टेज ऑफ द प्लांट, ठीक है। सीडलिंग्स में, बर्ड्स में सीड्स में जो इनएक्टिव रेस्टिंग स्टेज होती है उसको वो डोरमेंसी बोलते हो। और डोरमेंसी क्यों होती है, डोरमेंसी इज ड्यू टू कि मेटाबॉलिज्म रुक गया या न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उन वजह से डोरमेंसी जो है, सपोज प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा, सीड्स में है, अगर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल नहीं है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं चल रहा, तो वो डोरमेंसी हो जाएगी, इनएक्टिव रेस्टिंग स्टेज हो जाएगी। ओके, सो जिबरलिन अगर आप उसका नेचुरली जिबरलिन उसमें इंट्रोड्यूस होता है तो इट हेल्प इन ओवरकमिंग नेचुरल डोरमेंसी इन बर्ड्स, ट्यूबर्स, सीड्स एंड हेल्प देम टू ग्रो। बर्ड्स में, ट्यूबर्स में, सीड्स में डोरमेंसी को रिमूव करता है, ब्रेक करता है डोरमेंसी को, मीन्स जो मेटाबॉलिज्म रुका हुआ उस मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है। ओके, एंड हेल्प देम टू ग्रो। नाउ there are other function, okay, so these are the important functions की, हाँ, one more important is that कि it help in ये senescence को भी delay करता है। okay, senescence क्या होता है, aging in plants, तो plants में जो aging का process है उसको भी जो जिबरलिन एसिड अगर इंट्रोड्यूस करोगे तो जैसे आपको पता है प्लांट्स लगे होते हैं तो अगर वो इजिली जल्दी जल्दी से वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो जो फार्मर्स होते हैं, जो भी जो प्लांट्स लगाते हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, तब तक वो मार्केट में जाएंगे, तब तक वो खराब भी हो जाते हैं। ओके, सो अगर उनकी मैच्योरेशन धीरे धीरे होगी तो डेफिनेटली वो पूरे टाइम पे मार्केट में पहुंचेंगे। ओके, तो उसने कहा है कि जो ये जिबरलिन है ये डिले करता है सीनेसेंस, मींस प्लांट में जो एजिंग का प्रोसेस है उसको डिले करेगा। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है कि बोल्टिंग करता है रोजेटी प्लांट्स में।
नाउ यू आर हैविंग द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन्स. अगेन एप्लीकेशन मीन्स कि हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं. सो जिबरलिन अपार्ट फ्रॉम शोइंग वेरियड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, हैव न्यूमरस एप्लीकेशंस. इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ डिले सीनेसेंस, जो मैंने आपको आगे बताया, डिले द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. डिसीनेसेंस मीन जो जल्दी फ्रूट्स राइपन हो जाते हैं. तो उसने कहा दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेफ एंड प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ द फूड. ओके. देन यू आर हैविंग द माल्टिंग प्रोसेस. माल्टिंग बेसिकली फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जो हम अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं. तो वहां पे भी जिबरलिन एसिड जो हमारे इंडस्ट्रीज में है, उसका प्रोसेस ऑफ माल्टिंग इन ब्रूइंग इंडस्ट्री कैन बी स्पीडेड अप बाय द यूज ऑफ GA3. तो अगर हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जो अल्कोहल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, अगर उसको स्पीड अप करने के लिए अगर हम उसमें जिबरलिन डालते हैं तो डेफिनेटली ये उसके प्रोसेस को स्पीड अप करेगा. ओके. देन शुगर ज़ील्ड, उसने कहा एज कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके. जो शुगर केन की जो स्टेम होती है, यू आपको पता है कि शुगर केन में स्टेम इज द फ्रूट. ओके. तो एज कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर इन द स्टेम ऑफ शुगर केन, दस therefore if crop of sugarcane is sprayed with gibberellin it result in increased internodal length of the stem. तो अगर हम शुगर केन की क्रॉप में स्प्रे करेंगे जिबरलिन, तो उसमें क्या होगा कि उसकी इंटरनोडल जो लेंथ है वो बढ़ेगी. सो उसमें दिस इनहेंसेस द इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ शुगर केन एज मच एज 20 टन्स पर एकड़. ओके. तो इतना जो है उसका साइज जो है वो बढ़ाता है. Then early seed production plants like Cycas spinous when sprayed on juvenile conifers hasten the maturity period of time leading to seed production. Okay. तो उसने कहा है कि जिन प्लांट्स में सीड प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे हो रही है, तो उन प्लांट्स में साइकस स्पाइनस अगर हम उसमें जिबरलिन इंट्रोड्यूस करते हैं तो सीड प्रोडक्शन जो है जो थोड़ी लेट होनी होती है वो क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है. इनहेंस करता है, उसका मैच्योरिटी पीरियड है वो जल्दी कर देता है, तो जल्दी सीड जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. ओके. सो दीज आर द important functions applications of जिबरलिन. ओके. सो देर आर अदर फंक्शन ऑल्सो, जैसे इलोंगेशन ऑफ स्टेम जो आपने देखा, रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है. अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है तो उसको ड्वार्फिज्म को रिमूव करेगा. बॉल्टिंग में हेल्प करता है. ओके. नाउ इट ऑल्सो हेल्प इन द सेल डिवीजन इन द कैम्बियम. ओके. कैम्बियम ऐसे हमारा जो बेसिकली सेल डिवीजन जो है वो हेल्प करता है हमारा साइटोकाइनिन जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है. बट उसने कहा है कि जिबरलिन कैन ऑल्सो स्टिमुलेट सेल डिवीजन. कहाँ पे सेल डिवीजन करता है, कैम्बियम में. ओके. कैम्बियम, यू नो कि कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम बनता है जाइलम और फिलोम के बीच में कैम्बियम. ओके. that is in the secondary growth. ओके. सो सेकेंडरी ग्रोथ में आप थॉरली कैम्बियम के बारे में पढ़ोगे. सेकेंडरी कैम्बियम है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. बट जस्ट रिमेंबर कि जो जिबरलिन है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है. मेन फंक्शन इसका इलोंगेशन है, बट इट ऑल्सो हेल्प इन द सेल डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम. जो कैम्बियम फॉर्मेशन होती है, कैम्बियम क्या होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट में हेल्प करता है. और सेकेंडरी ग्रोथ किसके लिए होती है, प्लांट की गिर्थ को, प्लांट की विड्थ को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसमें जाइलम फिलोम जो है बनते हैं, फिर सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फिलोम बनता है. ओके. बट डोंट वरी, दैट वी विल सी थॉरली. वो आपको वहां पे समझ आएगा जब आप सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करोगे कि कैम्बियम रिंग क्या होती है. ओके. सो जस्ट रिमेंबर कि जो जिबरलिन है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है इन द कैम्बियम. ओके. देन पार्थिनोकार्पी में भी हेल्प करता है. यू नो कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो जो जिबरलिन है, बड़े सारे प्लांट जो है, टोमेटो में है, एप्पल है, उनमें पार्थिनोकार्पी जो है उसमें हेल्प करता है. ओके. जैसे उसने कहा है कि ये वो एग्जांपल है जब कई बार ऑक्सीजन जो है इनफेक्टिव होता है, तो उस टाइम पे हम जिबरलिन जो है वो डालते हैं. सो जो अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, इनफेक्टिव है, तो उस टाइम पे हम जिबरलिन भी यूज कर सकते हैं टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी. ओके. देन इट ऑल्सो हेल्प इन सीड जर्मिनेशन. कुछ प्लांट्स में जो है सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है. ओके. एंड देन important one more important function is there that is not written here, that is a de novo synthesis of hydrolytic enzyme. okay. जिबरलिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज करता है बड़े सारे एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे अल्फा माइलेज, राइबोन्यूक्लियस है, प्रोटीएज है, बार्ले ग्रेन्स में. आपको पता है यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन. ओके. मॉर्फोलॉजी चैप्टर में अगर आप ग्रेन का मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें जो अंदर की लेयर होती है, बाहर अंदर की जो लेयर है वो स्टार्ची लेयर है, बाहर उसमें प्रोटीन की लेयर होती है. ओके. तो वहां पे जो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं वो इसकी हेल्प से सिंथेसाइज होते हैं, तो उसको आप बोलते हो डी नोवो सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम. ओके. सो जस्ट रिमेंबर कि जो जिबरलिन हार्मोन है वो बड़े सारे एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. ओके. एंड देन ओके. सो दीज आर द प्रोसेसेस. बाकी सारे इफेक्ट्स जो हैं, छोटी छोटी चीजें जो हैं, फ्लोरिंग करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में. ओके.
एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ मेल फ्लोर विद फीमेल फ्लोर, ये छोटे छोटे फंक्शन जो हैं कुछ हेल्प में, कुछ प्लांट्स में ये है। पोलन जर्मिनेशन को भी स्टिमुलेट करता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ जिबरलिन। बट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें क्या है कि सिनेसेंस करता है, माल्टिंग करता है, बॉल्टिंग करता है। ओके, शुगर यील्ड को इंक्रीज करेगा इन केस ऑफ शुगर केन। ओके, सो दिस हैव you have seen. Okay, so gibberellin is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so these are the functions that you have to learn, but remember you have to learn all the function, but important functions के बाद छोटे छोटे इसके काफी सारे फंक्शन हैं, इसीलिए there is a confusion कि बड़े सारे फंक्शन भी होते हैं, जैसे कुछ में अब बड़ी जगह आप देखोगे साइटोकाइनिन जो बेसिकली हेल्प करता है सेल डिवीजन में, बट जिबरलिन इज आल्सो हेल्पिंग इन सेल डिवीजन इन वैस्कुलर कैम्बियम। सो दैट्स व्हाई इसमें बड़े सारे फंक्शन जो है, बड़े सारे हार्मोन्स जो है सिमिलर होंगे। जैसे जिबरलिन आपका पार्थिनोकार्पी, ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी कर रहा है, बट जिबरलिन भी पार्थिनोकार्पी करता है इन एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनिन। दैट्स व्हाई अगर आप कहीं भी देखोगे तो फंक्शन इनके क्या होते हैं, ऑलमोस्ट जो है सिमिलर होते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट यू आर हैविंग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज द साइटोकाइनिन। ओके, अब उसने क्या है कि दीज आर ग्रोथ प्रमोटर दैट आर बेसिक इन नेचर। ओके, जो अब जिबरलिन थे वो आपके एसिडिक है, दीज आर द बेसिक इन नेचर, दे हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड वर डिस्कवर्ड as carnitin, a modified form of adenine a purine. Okay, purine. When we study the structure of DNA, then you will come to know कि what is adenine. अभी भी मे बी आपको पता होगा, बट जस्ट रिमेंबर कि प्यूरिन और pyrimidine ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि प्यूरिन क्या है, व्हाट इज एडेनिन। ओके, सो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एक प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेसिस है, एक pyrimidine जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। बट जस्ट रिमेंबर वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, इसका बेसिक इफेक्ट किस पे होता है, साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, और इसका जो उसने जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ है काइनेटिन इसको बोलते हैं। और काइनेटिन क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। ओके, एडेनिन क्या है, हमारा एक नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में जैसे प्रेजेंट होता है, तो ये इससे मॉडिफाइड फॉर्म है काइनेटिन एडेनिन की। एडेनिन इज ए प्यूरिन, बट डोंट वरी, एडेनिन प्यूरिन दैट वी विल डिस्कस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि काइनेटिन उसका डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, जो साइटोकाइनिन है वो एज अ काइनेटिन डिस्कवर्ड हुआ है, मींस ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन। ओके, नाउ उसने क्या है, लेथोमेटल जो है उसने 1964 में वाइल सर्चिंग फॉर ए सबस्टांस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी आइसोलेटेड जाइटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। ओके, जाइटिन जो है, काइनेटिन, जाइटिन, ये सारी इसकी फॉर्म्स हैं साइटोकाइनिन की। Now presently severally naturally occurring cytokinin, some synthetic compound have cell division promoting activity have been identified after the discovery of जाइटिन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जाइटिन जो है डिस्कवर्ड हुआ था, और उसके बाद बड़े सारे जो हैं सबस्टांसेस जो हेल्प करते हैं किसमें, सेल डिवीजन में, वो डिस्कवर्ड हुए हैं। ओके, बट जस्ट रिमेंबर जो साइटोकाइनिन है हार्मोन, उसने कहा है कि स्कूग और मिलर ने, जस्ट रिमेंबर कि स्कूग और मिलर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था तंबाकू प्लांट में इसको। ओके, टबैकम जो टबैकम प्लांट है उसमें सबसे पहले साइटोकाइनिन को ऑब्जर्व किया था। ओके, एंड उसने कैसे किया, उसने बोला कि तंबाकू प्लांट में जो सेल्स ऑफ इंटरनोडल रीजन ऑफ द स्टेम जो थे वो ग्रो कर रहे थे, उसमें उसमें डिवीजन हो रही थी। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तंबाकू प्लांट में जो इंटरनोडल रीजन, अब आपको पता है कि इंटरनोडल रीजन क्या होता है स्टेम का, तो तंबाकू प्लांट का जो इंटरनोडल रीजन है वहां पे सेल्स में क्या हो रही थी, डिवीजन हो रही थी। अब उन्होंने चेक किया कि उसमें क्या चीज प्रेजेंट है, तो उन्होंने कहा, वहां पे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो दे हैव सीन कि ऑक्सिन के साथ कोई और सबस्टांस है जो वहां पे सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहा है। ओके, फिर बाद में ये चीज डिस्कवर्ड हुई कि ऑक्सिन के साथ एक और सबस्टांस कौन सा है जो रैपिड प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहा है, प्रोलिफरेशन मीन सेल डिवीजन। ओके, रैपिड प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहा है, तो वो क्या था, उसने बोला वो सबस्टांस जो क्या था, दैट इज द साइटोकाइनिन। ओके, तो उन्होंने देखा कुछ और चीज जो है ऑक्सिन के साथ कोई एक और चीज है जो यहाँ पे प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रही है, एंड लेटर ऑन दे ऑब्जर्व कि वो जो और चीज थी वो क्या थी, दैट इज द साइटोकाइनिन। ओके, और स्कूब और मिलर ने सबसे पहले जो है इसको आइसोलेट किया था। नाउ
Natural cytokinins are known to be synthesized in the region where rapid cell division takes place. और ये कहाँ पे ज्यादा सिंथेसाइज होते हैं? जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होनी होती है, जैसे रूट अपेक्स है, शूट अपेक्स है, बर्ड्स हैं, यंग फ्रूट्स हैं, जहाँ पे भी सेल डिवीजन होनी होती है, तो वहां पे साइटोकाइनिन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं. आउट ऑफ दीज रूट आर द मेजर सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन फ्रॉम वेयर दे मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम. ओके, सो उसने कहा कि जो मेजर पोर्शन, वैसे भी आपको पता है कि हार्मोन्स जो हैं सिंथेसाइज अलग साइड पे होते हैं, वर्क उनका अलग जगह पे होता है. तो इन द सेम वे कि उसने कहा कि आउट ऑफ दीज रूट आर द मेजर सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन. सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन है रूट्स में होती है, तो मेजर सोर्स है साइटोकाइनिन का, वहां से वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं थ्रू जाइलम. Okay, then you are having the functions of cytokinin. There are many functions. First of all, promote cell division. Okay, so उसमें क्या है, there is one of the most common important biological effect of kinetin in plant to induce cell division, but just remember it induce cell division only in the presence of auxin. Sufficient amount of auxin present होगा तभी ये जो है सेल डिवीजन करेगा. reduces apical dominance, they promote the growth of lateral bud by breaking apical dominance. क्योंकि ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस करता है, सो जो आपका साइटोकाइनिन है वो एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करता है और लेटरल बर्ड्स को ग्रो करता है, करने में हेल्प करता है. क्योंकि जब तक एपिकल डोमिनेंस हो रही है, द लेटरल बर्ड्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो. ओके, तो एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करेगा, ओनली देन द लेटरल बर्ड्स विल एबल टू ग्रो. Then morphogenesis, differentiation or morphogenesis of plant tissues organ is seen to be controlled if ratio of cytokinin and auxin is proportionate. This is also important. Okay. Yes, are you all getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. सो उसने क्या है, मॉर्फोजेनेसिस में डिफरेंशिएशन करता है. देखो ऑक्सिन, यू नो कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन. सेल जो है डिवाइड करते हैं कॉन्टिन्यूसली, मेरिस्टेमेटिक सेल, और एक स्टेज आती है जब वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, एंड देन दे विल डिफरेंशिएट इनटू अ पर्टिकुलर टिश्यू, इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्गन, इनटू अ पर्टिकुलर सिस्टम. ओके, अब इसने कहा है कि ये जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये हेल्प करता है डिफरेंशिएशन में या मॉर्फोजेनेसिस, इसकी ऑर्गन की फॉर्मेशन में. कैसे? इफ रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन ऑक्सिन इज प्रोपोर्शनेट, मींस कि इसमें दिया हो कि अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जो रेशियो है सेम होगी. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सेम होगा. मैंने आपको बोला साइटोकाइनिन वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ज्यादा काम वो ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही करता है. ओके, सो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, रेशियो सेम होगी, तो ये सिर्फ सेल डिवीजन में हेल्प करता है. ओके, बट जस्ट रिमेंबर कि अगर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू साइटोकाइनिन, तो ये रूट फॉर्मेशन में हेल्प करने लग जाता है. अगर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ओके, सो बट रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये बेसिकली हेल्प कर रहा है, काम कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ऑल्सो. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द हार्मोन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की सेम होगी, तो ये सेल डिवीजन करेगा, सिर्फ ओनली सेल डिवीजन. If auxin is more, cytokinin is less, then it will promote root formation. If cytokinin is more, auxin is less, then it will help in shoot formation also. Okay. Then delay senescence, ये भी उसकी तरह जो है जिबुलिन की तरह help in delaying senescence of leaves and other organs by controlling synthesis of protein and mobilization of resources Ma'am? of nutrients. Yes. मैम थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो. Morphogenesis. यस मैम. ओके, मॉर्फोजेनेसिस मींस कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं. बट डोंट वरी, जब आप प्लांट टिश्यू पढ़ोगे ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हैं, तब आपको वहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी. मेरिस्टेमेटिक सेल जो है फिर वो डिवाइड होके डिवाइड डिवीजन बंद करते हैं तो परमानेंट बनते हैं. बट यहाँ पे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे. सपोज एक सेल है, उसने 2 बार डिवाइड किया, एक बार डिवाइड किया 2 बनाए, 2 बार डिवाइड किया 4 बनाए, देन सेकंड डिवीजन 8 बनाए, 16 सेल्स बनाए. ओके ओके, सपोज 16 सेल्स बन गए. 16 में से जो 2 सेल्स हैं, आउट ऑफ 16 2 विल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड दे विल डिफरेंशिएट इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्गन. सपोज वो 2 जो है वो जाइलम बनाना स्टार्ट कर देंगे या फिलोम बनाना स्टार्ट कर देंगे. तो जब एक सेल जो है डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक सेल जब अपनी डिवीजन बंद कर देता है, तो उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है. और जब ऑर्गन बन जाता है उसके बाद वो डिवाइड नहीं करता. ओके, सो उसने कहा है कि जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो है वो हेल्प करती है डिफरेंशिएशन में. सपोज मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो जो है अगर प्रोपोर्शनेट होगी, तो उससे क्या होगा कि वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहे हैं वो उन सेल्स को हेल्प करेगा ऑर्गन्स बनाने में. ओके, सो ये जो मैंने आपको चीज बोली कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है दोनों अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो इसका करें इज प्रोपोर्शनेट, अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो सेल डिवीजन करेंगे,
अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये रूट फॉर्मेशन, इनकी रूट की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट की फॉर्मेशन। बट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते हैं, एक टाइम पे आके वो लूज कर देते हैं अपनी डिवीजन की कैपेसिटी, और किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, जैसे सपोज जाइलम बनाना स्टार्ट कर देंगे, फिलोम बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं या फिर उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। Okay, then you are having the resistance. They also they also increase resistance of plant to higher lower temperature and diseases. Okay, तो ये plants को resist करता है against different temperature and diseases and delay senescence also. Okay, then you are having the application of cytokinin. cytokinin को हम बड़ी जगह यूज करते हैं। एक किसमें दिया हुआ, रिचमैन ने सबसे पहले यूज किया था। रिचमैन ने क्या किया, 2 लीव्स लिए, ओके, एक छोटा मतलब 2 लीव्स लिए सेम साइज के, एक को उसने डिप किया साइटोकाइनिन के अंदर। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 लीव्स लिए, एक को उसने डिप किया साइटोकाइनिन के अंदर। जिसको उसने साइटोकाइनिन के अंदर डिप करके रखा, वो उसमें क्या हुई, सीनेसेंस जो है वो डिले हुई, मतलब वो काफी टाइम तक ग्रीन रहा। और जो दूसरा वाला था वो जल्दी जो है वो मतलब उसमें एजिंग होगी बहुत जल्दी, इसलिए उसको बोलते हैं रिचमैन लैंग इफेक्ट। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। तो रिचमैन ने सबसे पहले 2 लीव्स लिए, एक को उसमें किसमें डाला, डिप्ड इन साइटोकाइनिन, एक को ऐसे रहने दिया। जिसको उसने साइटोकाइनिन में डाला, उसमें क्या हुआ, वो काफी टाइम तक उसका स्टेट ग्रीन फॉर मेनी टाइम, मतलब बड़ी टाइम तक जो था वो ग्रीन रहा। इट मीन्स कि इट हेल्प इन डिलेइंग द सीनेसेंस। ओके ओके, सो टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन को, वो तो आपको पता ही है कि टिश्यू कल्चर जो भी हम यूज करते हैं, जो हम प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेके हम उसको लैब में यूज करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली साइटोकाइनिन चाहिए, क्योंकि साइटोकाइनिन एसेंशियल फॉर टिश्यू कल्चर। अपार्ट फ्रॉम सेल डिवीजन, दे आल्सो इन्वॉल्व इन मॉर्फोजेनेसिस। फर्स्ट पॉइंट तो यही होता है कि हम प्लांट का कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल लेके उसको लैब में टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं। तो अगर वो हम सेल लेके उसको डिवाइड आगे करेगा तभी तो टिश्यू कल्चर होगा ना प्रॉपर्ली। तो वो जो टिश्यू कल्चर में मतलब कि वो जो सेल जो है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ द साइटोकाइनिन ओनली। और ये सिर्फ डिवीजन नहीं करता, ये मॉर्फोजेनेसिस भी करता है। वो जो सेल्स डिवाइड करेंगे उनसे भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन भी करेगा। सेल्फ लाइफ, उसने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइटोकिन टू हार्वेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कीप्स देम फ्रेश फॉर सेवरल डेज एंड इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ। ओके, तो अगर आप उसमें क्या फ्रूट्स जो है अगर उन पे स्प्रे कर देते हैं तो इनकी सेल्फ लाइफ जो है उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब कि काफी टाइम तक वो जो है फ्रेश रहते हैं और उनकी जो लाइफ है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, सेल्फ लाइफ। ओके, जिससे वो फ्रेश रहते हैं। सो दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, Okay. ma'am. So this is all about the cytokinin and the gibberellin. In the next class, we will discuss about the abscisic acid and the ethylene. Okay. So anything you want to ask? Any question is there? Ma'am. Yeah. Yes. Yes. Ma'am, syllabus कब दोगे आप? Yes, Ashya. Ma'am, syllabus of bio and IVS. Dear, okay. Today I will send. Okay. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. Others. Okay. Others. Any question? Excuse me, ma'am. Yes. Yes, Ma'am, Priyanshi. we have to cover our practical books. Yes, yes, practical. Okay, don't worry, that I will tell you in the Google Classroom. I will send you the message that how to complete and why, when you have to complete. Okay, that I will today I will send you the message. Okay, I will give you the date and all the things. Okay, ma'am. Okay. If any question is there, you can send your message in the Google Classroom. Okay. Okay. So if you don't have any question, you all can leave the class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.